श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 12 श्लोक संख्या 3। दृष्ट्वा पापयसीं सृष्टिं नात्मानं वयमन्यत भगवत ज्ञान भूतेन मनसान्याम ततो सृजत। अर्थ અને अनुवाद भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दृष्ट्वा જોઈને પાપીયસીમ પાપપૂર્ણ સૃષ્ટિમ સૃષ્ટિ ન નહીં આત્માનમ પોતાને બહુ બહુ આનંદ અમન્યત લાગ્યો ભગવત ભગવાનના ધ્યાન ધ્યાન ઉતેન તેનાથી પવિત્ર થયેલા મનસા આવા મનથી અન્યામ બીજી તત ત્યાર પછી અસૃજત ઉત્પન્ન કરી। અનુવાદ આવા ગેરમાર્ગે દોરનાર સર્જનને પાપપૂર્ણ કાર્ય તરીકે જાણીને બ્રહ્માજીને તેમની પ્રવૃત્તિમાં બહુ પ્રસન્નતા થઈ નહીં। તેથી તેમણે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીને પોતાની જાતને શુદ્ધ કરી। ત્યાર પછી તેમણે સર્જનના બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરી। ભાવાર્થ અવિદ્યાના વિવિધ પ્રભાવશાળી તત્વો તેમણે ઉત્પન્ન કર્યા। આવો ખોટનો સોદો કરવાથી બ્રહ્માજીને પ્રસન્નતા થઈ નહીં, પરંતુ મોટા ભાગના બદ્ધ જીવો એમ ઈચ્છતા હોવાથી તેમ કરવું પડ્યું હતું। ભગવદ્ ગીતા 15:15 ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે હું દરેકના હૃદયમાં વિદ્યમાન છું અને દરેક જીવને સ્મરણ કે વિસ્મરણ કરવામાં મદદ કરું છું। જે પરમ કૃપાળુ જે પરમ દયાળુ છે એવા ભગવાન એકને સ્મરણમાં અને બીજાને વિસ્મરણમાં સાથી મદદ કરે છે એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય। વાસ્તવમાં ભગવાન એકના પ્રત્યે પક્ષપાત અને બીજાના પ્રત્યે શત્રુતા કરીને તેમની દયા દાખવતા નથી। ભગવાનનો અભિન્ન અંશ એવો જીવાત્મા અંશતઃ બહુ થોડા પ્રમાણમાં સ્વતંત્રતા છે, કારણ કે તે ભગવાનના બધા ગુણો અંશતઃ ધરાવે છે। જેને થોડી સ્વતંત્રતા મળે છે તે તેના અજ્ઞાનને લીધે કેટલીક વાર તેનો દુરુપયોગ પણ કદાચ કરે છે। જ્યારે જીવાત્મા તેની મળેલી સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરવા અને અવિદ્યા તરફ અધોગતિ કરવા ઈચ્છા કરે છે ત્યારે પરમ દયાળુ પરમેશ્વર પ્રથમ તો તેને ફાંસામાંથી બચાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ જીવાત્મા જ્યારે અધોગતિના માર્ગે પતિત થવાનું ચાલુ રાખે છે ત્યારે ભગવાન તેને તેની સાચી અવસ્થા ભૂલી જવામાં મદદ કરે છે। પતનશીલ જીવને અધોગતિના ખાડામાં તળિયા સુધી જવામાં ભગવાન તેને મદદ કરે છે, જેથી તેને એ જાણવાની તક મળી શકે કે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરવાથી તે સુખી થયો છે કે નહીં। સંસારમાં જે જીવો સબડી રહ્યા છે તે તમામ બદ્ધ જીવો તેમની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે। તેથી 5 પ્રકારની અવિદ્યા તેમની ઉપર લાદવામાં આવી છે। ભગવાનના આજ્ઞાકારી સેવક તરીકે બ્રહ્મા આ સૌનું એક જરૂરિયાત તરીકે સર્જન કરે છે, પરંતુ આમ કરવામાં તે સુખી થતા નથી, કારણ કે ભગવત ભક્તને કોઈ જીવ તેની અસલ અવસ્થામાંથી અધોગતિ પામે તે ગમતું નથી। જે મનુષ્યો આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગની પરવા કરતા નથી તેમને તેમની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ મુજબ આચરણ કરવામાં ભગવાન બધી સગવડ આપે છે અને તે પ્રક્રિયામાં બ્રહ્માજી અચૂક મદદ કરે છે। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण दलिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। गुजराती चलेगा? नहीं चल रहा तो शू करे? हिंदी? मुझे थोड़ा ठीक है बोलूंगा, मुझे थोड़ा हिंदी में कोई बात नहीं बोलेंगे। ओके ठीक है। तो आप सभी का इधर स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। यहाँ देखिए ये श्रीमद् भागवतम के अंदर जो विषयों की चर्चा है बहुत आनंदमय है। जैसे हमने पिछले चैप्टर हमारा चल रहा था परमाणु के द्वारा काल की गणना, तो कितना अच्छा वो विषय था, बहुत मजा आता था कि कैसे ये पूरा समय का गिनती था पूरा, कि कैसे ब्रह्मा का आयुष्य क्या है और ब्रह्मा के कंपैरिजन में जीवात्मा का आयुष्य क्या है, ब्रह्मा देवता का आयुष्य क्या है, इतना मजा आता था। तो भक्त का आनंद यही है, भगवान की लीला जन्म कर्म के बारे में जान के आनंद लेना। भक्त जैसे कौवा होता है ना, वो कूड़ेदान के अंदर खा के मजा लेता है, तो भक्त ऐसे आनंद में नहीं पड़ते हैं। भक्त को ऐसा मत चित्ता मत गाना बोधियंत परंपरा, भक्त के जो भगवान के भक्त है वो सिर्फ भगवान की लीला के बारे में चर्चा करके आनंद लेते हैं। तो यही श्रीमद् भागवतम का वो काल गणना का चैप्टर पूर्ण हो गया। बहुत अच्छा चैप्टर था, जिससे हमको पता चलता है कि हम तो कुछ ही नहीं है इस जगत में, क्योंकि ब्रह्मा का आयुष्य देखा कितना करोड़ों साल का है, तो हम तो चिट्ठी भी क्या, कुछ है ही नहीं। तो हमारा रियल में हमको पता चलता है कि ये जो जीवन है कितना वैल्यूएबल है, कितना, अगर हम इसको गंवा देंगे तो 100 साल तो कहां निकल जाएंगे हमारे, कुछ है ही नहीं। और ब्रह्मा भी बोलते हैं कि भाई मुझे भी मृत्यु से भय है, देखिए, पर इस कलयुग के प्रभाव से ये बद्ध जीवात्मा को मृत्यु का भय नहीं है। देखो बिंदास पड़ते सब, किसी को कुछ चिंता नहीं कल क्या होगा, और यही सोचते हैं कि कोई चिंता विंता करने का नहीं भाई, और खाओ पियो ऐश करो, बस नहीं चिंता करते हैं। तो यहां पे इस श्लोक के अंदर मैत्रेय जी कहते हैं कि આવા ગેરમાર્ગે દોરનાર સર્જનને પાપપૂર્ણ કાર્ય તરીકે જાણીને બ્રહ્માજીને તેમની પ્રવૃત્તિમાં બહુ પ્રસન્નતા नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लगा ये सब सर्जन किया आगे। तो ऐसा ही वेदम व्यास मुनि को हुआ कि जब उसने इतना वेद लिखा, शास्त्र लिखा, पुराण लिखा, और उसको प्रसन्नता नहीं हुई, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो नारद मुनि ने बोला कि क्या हुआ? तो बोला मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए पर अभी भी मुझे कुछ आनंद, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बोला इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आपने कुछ भगवान की चर्चा नहीं की अभी तक, भगवान के जन्म कर्म के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में वो नहीं किया है, तो इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही इधर हुआ है। ब्रह्मा जी को लगा कि यार ये 5 चीज तो है, बहुत क्या है 5 चीज, वो कि काल स्वरूपमय भगवान मय, हाँ बीजा नंबर, ब्रह्माए प्रथम महामोह मृत्युનો ભય, हताशति तथा क्रोध, मोहमयी देहात्म बुद्धि और स्वरूप विस्मृति, इसका सर्जन किया। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। भावार्थ अविद्याના વિવિધ પ્રભાવશાળી તત્વો તેમણે ઉત્પન્ન કર્યા। આવા ખોટનો સોદો કરવાથી બ્રહ્માજીને પ્રસન્નતા થઈ નહીં, પરંતુ મોટા ભાગના બદ્ધ જીવો એમ ઈચ્છતા હોવાથી તેમ કરવું પડ્યું હતું। तो ये जो मनुष्य बॉडी जो हमें मिला है ना, ये बहुत कीमती शरीर है। अगर ये मनुष्य शरीर का हम ये भगवान के बारे में जानने के लिए नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो खोट का सौदा होगा। हम कुछ भी कर लेंगे, कितना भी प्राप्त कर लेंगे, पर अगर ये ज्ञान नहीं जानेंगे, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, तो ये हमारा जो शरीर है वो क्या खोट का सौदा हो जाएगा। भगवत गीता 15 में भगवान कृष्ण कहे छे कि हूँ दरेकना हृदयમાં विद्यमान छूं અને દરેક જીવને સ્મરણ કે વિસ્મરણ કરવામાં મદદ કરું છું। જે પરમ દયાળુ છે એવા ભગવાન એકને સ્મરણ કરવામાં અને બીજાને વિસ્મરણ સાથી મદદ કરે છે। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही, हे अर्जुन, मैं ही ज्ञान, मैं ही विस्मरण और स्मरण दोनों करवाता हूं। तो कोई सोच सकता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, एक को याद दिलाते हैं और एक को भुला देते हैं। तो यहां कहते हैं कि भगवान कहते हैं ममेव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, ये जो जीव है ना वो मेरा अंश है और मेरी ही सनातन है।
तो हम भगवान के अंश है, इसलिए भगवान हमें थोड़ी स्वतंत्रता देते हैं, थोड़ी फ्रीडम देते हैं। तो वो फ्रीडम जो हमें जो स्वतंत्रता देते हैं उसका हम मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जैसे हमारा लड़का है तो हम अपने लड़के से बहुत प्रेम करते हैं, तो अभी कभी इसको देख देते, दिख रहा, लो ये 500,000 रुपया लाओ, जरा एंजॉय करो, जाओ मजा करो। तो हमने 500 रुपया उसको दिए आनंद करने के लिए, पर वो 500 रुपया कहां यूज कर रहा है? वो दारू भी पी सकता है, जुगार भी खेल सकता है, क्योंकि पीता है ना, तो थोड़ी स्वतंत्रता दी उसको। पर बद्ध जीव, हम बद्ध होने के कारण क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग करने के कारण हम क्या करते हैं? भगवान से दूर जाते हैं। तो फिर भगवान, हमारा जो सनातन धर्म है या हमारे धर्मों में जो बात है ना, इसमें हम किसी को फोर्स नहीं करते कि नहीं आप बस यही करो, आप यही करो, नहीं, हमारे में ऐसा नहीं है। हम समझाते हैं पहले कि देखो भगवान क्या है, हम कौन है, हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप बस हमारे, हम जो बोलते हैं वही मान लो, कभी नहीं ऐसा बोलते। पहले आप आओ, भगवद्गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, समझो भगवान को, और फिर आप करो। तो यहां भगवान जो ये जो स्वतंत्रता देते हैं, हम किसी को ऐसा नहीं बोलते कि आप हमारे इस्कॉन में ही आ जाओ, नहीं। पर देखो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, आचार्य कहते हैं कृष्ण भगवान है, कितनी करोड़ों साल से परंपरा बोलती है कृष्ण भगवान है। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि कृष्ण भगवान है, आप ये मानो और ये जानो। तो कुछ जीव नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? स्वतंत्रता, उनको स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जो जीव की इच्छा ही नहीं है भगवान के पास जाने की, तो भगवान उसे विस्मरण करवा देते हैं, है ना। सिंपल बात है, किसी को इच्छा ही नहीं है भगवान के पास जाने की, तो फिर क्या करेंगे? भगवान तो बहुत चाहते हैं कि उसको मैं बुला लूं, भगवान बहुत प्रयत्न करते हैं। हमसे ज्यादा भगवान को दुख होता है हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए तो भगवान बार 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 यहां आते हैं। क्यों आते हैं? जीव को बचाने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, पहले तो साधु, जो साधु है उसको तारने के लिए आते हैं। उस भक्त जो बद्ध आत्मा है उसको उसके पास ले जाने के लिए आते हैं। तो भगवान ऐसा है, भगवान को ऐसा नहीं है कि भाई, पर बद्ध जीव जैसा ही बद्ध हो जाता है ये 3 गुणों के आवरण से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आवरण में बद्ध हो जाता है, तो वो नहीं, मुझे भगवान नहीं चाहिए, तो फिर भगवान उसको विस्मरण करा देते हैं। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान ऐसा क्यों करते, पर ये जब हमारी ही इच्छा नहीं है तो फिर क्या भगवान कर सकते हैं? हम कई बार पुस्तक वितरण में जाते हैं तो किसी को बोलते हैं कि भाई आप भगवान का भजन करो, तो बोले नहीं, अंदर से इच्छा होगी तब करेंगे, जब अंदर से आज्ञा होगी, इच्छा होगी। और कोई बोलते हैं कि जब हमारी बहुत 50 साल या 60 साल के बाद उम्र हो जाएगी तो करेंगे, अभी तो मेरे दादा पढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे दादा पढ़ते हैं, दादी पढ़ती है। देखिए, तो भाई शास्त्र में तो ऐसा कोई जगह पे नहीं लिखा है कि ये जो भगवद्गीता है, भागवतम है, ये तो ओल्ड एज वृद्ध लोगों के लिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ये तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। जैसे प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि आप कौमारम आर्जते प्राज्ञो, कुमारावस्था में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो लोग मन ऐसे अपने मन से ही भगवान से दूर करने के लिए ऐसी सब योजना बना देते हैं कि भाई अभी जब वृद्ध होंगे तब भगवान का नाम लेंगे। और कलयुग के अंदर हम जानते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं हम, अभी कुछ अच्छा नहीं है, हमारा क्या प्लान होता है और क्या हो जाता है। हम सोचते हैं कि भाई 1 हफ्ते के बाद ऐसा करेंगे, 1 महीने के बाद ये करेंगे, 1 साल के बाद ये करेंगे, पर हमको पता है कि क्या वो दिन या साल आएगा भी क्या? नहीं, वो आएगा नहीं, नहीं पता है। पर जो जीव बद्ध है, बद्ध अवस्था में, वो ऐसी कोई चिंता नहीं करता है। वो तो सोचता है भाई अभी तो मैं मजा कर रहा हूं बस। तो यहां लिखा है कि उसको भगवान विस्मरण करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता चले। तो ऐसा क्या कैसे होता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग के पास बहुत धनवान होते हैं, बहुत पैसा होता है, और जब उसको वो पूरा जीवन कुछ भगवान का नाम नहीं लेता पैसे के बल से, और जब अंत आता है ना तो उसके शरीर में बहुत बीमारी आ जाती है। उसके पास अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, पर फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तब उसके मन में शायद होता भी होगा कि यार मैंने ये पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, कुछ भगवान का नाम लेता तो अच्छा होता। पर तुमने तब उस समय इच्छा ही नहीं की,
तब आपको पैसे का गर्व था, आपके पास जो ऐश्वर्य था उसका गर्व था, तो आपने इच्छा ही नहीं की कि भगवान मुझे आपके पास आना है, सोचा ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। तो भगवान कहते अगर एक बार भी कोई सोचे कि भगवान मुझे आपके पास आना है, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। पर आप सोचेंगे ही नहीं कि भगवान बस मुझे तो ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है उसमें मजा आता है, तो फिर ठीक है लगे रहो, क्या करेंगे। तो फिर ऐसा होता है कि अंत में फिर वो पछताता है, इसलिए भगवान रखते हैं उसको। फिर वो इतना पछता है, फिर क्या, कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास करोड़ों अरबों रुपया होगा, पर आपको कोई फिर मृत्यु से नहीं बचा पाएगा। अच्छा वैद्य आपको नहीं बचा पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है, इसमें हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। संसार में जो जीव सबड़ी રહ્યા છે તે તમામ બદ્ધ જીવો તેમની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે। ये हमको ऐसे ऊपर से एक्सटर्नली बाह्य रूप से हमको अच्छा लगता है कि ये सब सुखी है, पर नहीं, ये लोग ये इससे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद ये लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितने सालों तक ये लोग फिरेंगे योनि में। तो जो सामान्य जनता है उसको पता नहीं चलता है, पर एक भक्त जानता है कि ये जो समय गंवा रहा है ना, उसको बहुत बड़ा हानि होने वाला है। क्या हानि? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र उसका चालू रहेगा। तो तेरी 5 પ્રકારની અવિદ્યા તેની પર લાદવામાં આવી છે। ભગવાનના આજ્ઞાકારી સેવક તરીકે બ્રહ્મા આ સૌનું એક જરૂરિયાત તરીકે સર્જન કરે છે, પરંતુ આમ કરવામાં તે સુખી થતા નથી। तो जो भक्त है ना, उसको कभी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई बद्ध जीव दुखी हो। तो यहाँ पे ब्रह्मा को भी बहुत दुख होता है कि ये 5 अविद्या जो है इसमें फंसकर जीवात्मा और बहुत दुखी हो जाएगा। तो ब्रह्मा को भी यहाँ पे बहुत दुख होता है, कारण कि भगवत भक्त ने कोई जीव तेनी असल अवस्था में अधोगति पामे ते गमतुं नथी। तो हमारा असल अवस्था क्या है? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हम सभी कृष्ण के दास है, पर कृष्ण के दास नहीं बनके हम, प्रभुपाद कहते हैं कि हम माया के दास बनते हैं, पत्नी के दास बनते हैं, समाज के दास बनते हैं, देश के दास बन जाते हैं। तो ये हम सब दासत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर कृष्ण के दास हमको नहीं बनना है। तो एक भक्त जो शुद्ध भक्त है उसको ये नहीं अच्छा लगता है कि भाई ये जीव भगवान के पास आ जाए तो अच्छा है, तो ये उसको दुख होता है। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी यही बात बोलते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, हे ऋषिदेव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। ये हम अभी भी देख सकते हैं, देखिए कि कितने संत लोग हैं, कुछ हिमालय की गुफा में है, कुछ जूनागढ़ की गुफा में है, कुछ इधर है कुछ उधर है, बराबर, पर वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करते हैं। एक जगह पे बैठ गए और मौन व्रत में बैठ गए। क्यों? खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। किंतु जहां तक मौन धारण करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं, वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु वह मेरी बात है, किंतु जहां मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा दुर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। प्रहलाद महाराज ऐसा बोलते, देखो कि मैं जब तक मेरी बात है तो मैं, ये सब मूर्ख लोग बोलते हैं प्रहलाद महाराज, ये सब मूर्ख है ये सब। क्यों? क्योंकि सब छोड़ के सब करते हैं पर भगवान का भजन नहीं करते, तो मूर्ख है वो। पुनर्पूर्वित चरवणा नाम, वो लोग एक चीज खाई है ना, उसको ही बार बार खाते रहते हैं। एक गन्ने का जो साठा बोलते, गन्ने का साठा, उसको एक बार मशीन में डाल दिया है, फिर उसको तीसरी बार चौथी बार वो निकालता रहता है, डालता ही रहता है, जब तक खाली नहीं हो जाए तब तक। पर वो जो पूरा पीस गया है ना, उसको भी खाने वाले लोग हैं, उसको बोलते हैं पुनर्चर्वित चरवणा नाम। तो प्रहलाद महाराज बहुत दुखी होते हैं कि भाई ये मूर्ख लोग को क्या बोले, ये इतना दिव्य जीवन मिला है और भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो प्रहलाद, ये भक्त को दुख होता ही है। यही हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसमें अगर हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे और दूसरा सब कुछ करेंगे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं है, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा और फिर न जाने कहां, फिर कब हमें मनुष्य से बॉडी मिलेगा। हम ये देखते हैं कि ये
તેથી તેમણે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીને પોતાને શુદ્ધ કરી और ત્યાર પછી તેમણે સર્જનના બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરી, दूसरा सर्जन का शुरुआत किया। तो ये सर्जन कभी रुकता नहीं है। ये जो ब्रह्मांड का सर्जन है वो कभी रुकता नहीं है। भूतवा भूतवा प्रलय देती है, गामा विशेष भूतानी धार्यम यम ओजसा, ये जो है ना सर्जन, ये कभी रुकता नहीं है। तो सोचिए कि कितने कोई गिनती ही नहीं है कि जीवात्मा कितने करोड़ों अबजों साल तक घूमता रहेगा। इसलिए एक भक्त को दुख होता है कि यार ये भले ठीक है कुछ भी करता है, पर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो भगवान का नाम ले। तो इसलिए भक्त जो है प्रचार में जाते हैं तो ऐसा ही मन में सोचते कि शायद कोई एक भक्त भगवद गीता पढ़ने लगे, एक भगवत दर्शन का मैगजीन पढ़ने लगे। भक्त क्यों इसीलिए तो जाते हैं प्रचार में। हमको कोई पैसा थोड़ी देता है कि 50,000 रुपया पगार मिलेगा जाओ पुस्तक वितरण करने, ऐसा थोड़ी है। पर किस लिए जाते हैं कि भक्त को दुख होता है कि इसमें से कोई आ जाए, इसमें से कोई एक भी हमारे प्रोग्राम में आ जाए, ऐसा सोचते हैं भक्त। तो यही रियल दुख है, यही रियल दया है भक्त के लिए, यही रियल दया है। और ये दया के लिए ही प्रभुपाद ने पूरे विश्व पे की। और आज हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे कि आज उसके पुस्तक पढ़ के भी कितने हजारों भक्त बन रहे हैं ऐसे ही। तो हर बार हम बोलते हैं कि हम तो बहुत भाग्यशाली है। रियल में हमारा जो सौभाग्य है ना उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भले ही किसी के पास कुछ भी नहीं है, पर अगर वो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान की शरणागति है, तो उसको और कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। वो जैसे भगवान आत्माराम होते हैं ना, भगवान को कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही भगवान का भक्त जो भगवान की शरण में जाता है ना, वो भी फिर एक बार कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो भी शांत हो जाता है, उससे भी आनंद मिलता है। जो व्यक्ति करोड़ों रुपया लेके आनंद पाता है ना, वो 0 रुपये से भक्त को आनंद मिलता है। ये सब भगवान की लीला, भागवतम, भगवान की कथा में है। तो यहाँ ये जो लोग बद्ध जीव है वो ये इसमें नहीं भाग ले रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं। तो बस हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आप भी हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी कुछ आपकी, पहले तो हम कुछ भक्ति करें और फिर धीरे धीरे हम भी आपको समझा के आपकी सेवा में लगाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।